ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭವಿಷ್ಯ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸ್ವಯಂ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾರಣವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿಎಫ್ಐಗೆ ವಿಶೇಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿತ್ತೂರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ, ತುಂಗಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆವು. ಕೆರೂರು ಲಿಫ್ಟ್ ಯೋಜನೆಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗೂ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಹದಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಅಡಿ 4.10 ಲಕ್ಷ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 4 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನೇ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಕಸಿತ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೀಸಲಾತಿ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಡಿತ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂದರು. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪರಿವಾರ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮದು ಪರಿವಾರ ರಾಜಕಾರಣವಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರಿವಾರ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರೋಧಿ ಇದೆ ಎಂದರು. ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತೇವೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಗೂ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 40% ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಸ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಿದೆ ಎಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ के सामने लड़ती है, परंतु चुनाव होने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठती है। इसलिए मैं कर्नाटक की जनता को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का सर्वांगीण विकास करेगी और कर्नाटक में से गरीबी का 100% उन्मूलन करेगी। सुरक्षित कर्नाटक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती। नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, 92 उनके मेन कैडर के लोगों को अरेस्ट किया गया। एनआईए आज आतंकवाद से जुड़े हुए 24 मामलों की जांच कर रही है और एक मजबूत शिकंजा देश विरोधी ताकतों पर कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सभी को मालूम है, कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई की कैडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण पीएफआई को काम करने की खुली छूट दी गई थी। हमने इस पर संपूर्ण लगाम कसने का काम किया है। आज मैं कित्तूर कर्नाटक में हूं। कांग्रेस पार्टी ने
हमेशा कित्तूर कर्नाटक का अपमान किया है। एक समय में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, गोवा और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर कभी भी महादायी विवाद को समाधान की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। 1980 में महादायी पानी का मांग करते हुए किसानों पर नवलगुंड में गोली भी कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। ये हमारी सरकार है जिसने सभी को साथ रखते हुए, सभी को न्याय देते हुए हमने मुद्दे का समाधान कराने का प्रयास किया था। ऊपरी भद्रा पर तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब 2009 से 14 में 94,000 करोड़ रुपया, 94,224 करोड़ रुपया टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का मिलता था कर्नाटक। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014 से 19 के 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया हमने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। 140% की ग्रांट की वृद्धि हुई है। उसी तरह से टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का योग करें तो 22,000 करोड़ मिलता था, इसकी जगह 3 गुना कर 75,220 करोड़ रुपया कर्नाटक को मिलता है। हमने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट भी करे। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस 8,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस 17,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बिदर कलबुर्गी बेल्लारी 7,600 करोड़ की लागत से, पहली दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन मैसूर चेन्नई मोदी जी ने लोकार्पण किया है। शिवमोगा और कलबुर्गी में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। हसन, विजयपुरा, कोल्लार और रायचूर में हवाई अड्डों का निर्माण शुरू हो चुका है। 7 मॉडल विश्वविद्यालय चामराजनगर, बीदर, हावेरी, हासन, कोडागु, कोप्पल और बागलकोट के अंदर हमने शुरू किया है और रायचूर और धारवाड़ में 2 ट्रिपल आईटी भी शुरू किए हैं। हमने मैसूर में एक टेक क्लस्टर बनाया है, मैसूर में फिनटेक क्लस्टर भी बनाया है। कर्नाटक में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है। 9 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और पिछले 4 साल में हमने 55 लाख रोजगारी का सृजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीब कल्याण की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,10,000 घर गरीबों को दे चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया है। लगभग 48 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा हमने दी है। 4 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपया हर साल 10,000 रुपये का हम चेक इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देते हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 1.38 करोड़ लाभार्थी हैं और 37 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के गैस योजना के भी हम दे चुके हैं। मित्रों, एक और सत्ता के लिए आंतरिक मतभेदों के साथ जनता के सामने आई हुई कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कर्नाटक की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली कांग्रेस और दूसरी ओर सुरक्षित कर्नाटक, नया कर्नाटक और
राजनीतिक स्थिरता के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में मैदान में उतरी हुई भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे तो विश्वास है, मैं 14 दिन चुनाव के पहले गुजार चुका हूं कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रही है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी कर्नाटक की जनता से करबद्ध निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और एक पूर्ण बहुमत की सरकार के माध्यम से सुरक्षित कर्नाटक, विकसित कर्नाटक और राजनीतिक स्थिरता वाला कर्नाटक हम आपको देंगे। ये हमारा वादा है। मोदी जी ने कर्नाटक के विकास के लिए कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। अगले 5 साल भी डबल इंजन सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है, ये हमारा वादा है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा है कि कुछ सवाल, मगर आप आराम से पूछेगा, हड़बड़ी मत करिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। धन्यवाद। आप बोल रहे थे कि खजीडोनी, लोकापुर और बागलकोट कुर्ची अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन खजीडोनी लोकापुर इट्स पार्ट ऑफ बागलकोट कुर्ची प्रोजेक्ट इट्सेल्फ। नहीं, ठीक है, आप करेक्ट करें। अलग अलग बोल रहे थे इसलिए। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का नारा लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाम कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, ये तय करने का कर्नाटक की जनता के लिए चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में डबल इंजन की सरकार के अब तक 4 साल में जो फायदे कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के गरीबों को और कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को हुआ है, इसके साथ हम चुनाव के मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन किया था उसको रद्द कर एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में लिंगायत और होकलिगा समाज के रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि कर बहुत समय के बाद सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी जानते हैं, धार्मिक आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, परंतु वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया था। कांग्रेस के लिए कर्नाटक जन कल्याण का मुद्दा नहीं है, कर्नाटक के विकास का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक में अपने एटीएम को ढूंढ रही है और दूसरी ओर जेडीएस भी एक परिवारवादी पार्टी है जो हमेशा चुनाव तो कांग्रेस के सामने लड़ती है, परंतु चुनाव होने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठती है। 1000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमने अनुदान दिया है और कर्नाटक के कुल 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया, जिसमें बेंगलुरु, बेलगावी, दावणगिरी, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, शिवमोगा और तुमकुर है। हुबली और धारवाड़ दोनों कित्तूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर है
जिसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के 62 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी आगे बढ़ाई है। इसके साथ साथ कित्तूर कर्नाटक में बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे परियोजना 150 करोड़ की लागत से, बागलकोट कुदाची रेलवे परियोजना 210 करोड़ की लागत से, खज्जी धोनी लोकापुर रेलवे परियोजना 140 करोड़ की लागत से, गड़ग एलवीगी रेलवे लाइन 600 करोड़ की लागत से हमने आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेलगावी में किडवई क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को 130 करोड़ रुपया दिया है और हावेरी में एक नया मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। सीगांव में टेक्सटाइल पाइप की आधारशिला रखी गई है। न केवल इससे रुई के किसानों को फायदा होगा, 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। हावेरी में एक मेगा डेयरी 1 लाख लीटर के उत्पादन की क्षमता के साथ करा है और गन्ना किसानों के लिए कांग्रेस के समय में 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी दी जाती थी, आज 3150 रुपया एफआरपी दी जाती है। ये बहुत बड़ा गन्ना किसानों के लिए फायदा है। 33 कंपनियों ने धारवाड़ और अन्य जिलों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने लगाए हैं। विजयपुरा में एक हवाई अड्डा का निर्माण भी हो रहा है। रायचूर कलबुर्गी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया गया। समग्र कर्नाटक की बात करें तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार भी तब